قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں بے شمار قومیں پیدا ہوئی، عروج و ارتقاء کی منزلوں سے ہم کنار ہوئی، رفعت و سربلندی نے ان کے قدم چومے، لیکن طاقت و اقتدار کانشا تاری ہاتھوں غرور و نخوت میں مبتلا ہوئی، خدا پرستی اور خدا فراموشی کو اپنا شعار بنا لی، خدا کی قائم کردہ حدوں سے اجتناب کیا، حرص برائی کو اختیار کی، رواج دیا جو قوموں کے زوال کا سبب ہوتی ہیں، آرام طلبی و عیش کوشی اور غفلت و بے خبری میں ایسے کھو گئی کہ انہیں اپنی ذات اور اپنی طاقت کے سکوچ بھی نظر نہ آتا تھا۔ ان کے علماء اور دانشور بھول گئے کہ انسان کا مقصود حیات کیا ہے۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی سے غفلت کا گناہ کیا، دربار گیری، خواہشیں برداری اور جا طلبی ان کی زندگی کا مقصد و مشن بن گئے۔ وہ بھول گئے کہ خدا نے انہیں دینی و دنیاوی منفعت بخش علوم سے سرفراز کیا ہے۔ دینی و دنیاوی سعادتیں عطا فرمائیں تو قوم کی صحیح رہنمائی کا ذمہ بھی ٹھہرایا، مگر وہ اپنی رہنمایانہ حیثیت کو فراموش کر بیٹھے، طرح طرح کی لغویات اور خرافات کے اسیر ہو گئے۔ اس کے بعد بھی خدا نے انہیں سنبھلنے اور پر سے راہ راست پر چلنے کے مواقع بار بار عطا کیے، لیکن جب ان کی نادانیاں اور نافرمانیاں قدرت کے آئین سے متصادم و متجاوز ہونے لگیں، ٹکرانے لگیں، تو زوال کو ان کا مقدر کر دیا گی، پھر تباہ و برباد ہو گئی، ان کا ناگنا و نشان تک مٹ گیا۔ بعض قوموں کو تاریخ کے صفحات میں بھی پناہ نہ مل سکی اور نیست و نابود ہو گئی۔ مصر کی فاطمی خلافت، بغداد کی خلافت عباسی، خلفائے اسپین اور خلافت عثمانیہ کے جا و جلال اور سربلند و سرفرازی کی مثال نہ تھی۔ ان کے خلفاء یورپ کے بڑے حصے پر قابض ہو گئے تھے، دنیا کے نصف سے زیادہ حصوں پر ان کا تسلط تھا۔ وہ دینی و دنیاوی سعادتوں کے امام تھے، یورپ کے کسی حکمراں کو ان سے آنکھیں چار کرنے کی مجال نہ تھی۔ ان میں ہمت تھی، بہادری اور شجاعت تھی، ان کے بازو تو نہ تھے، نہ وہ خود چین سے بیٹھتے اور نہ اپنے عسکریوں کو آرام کا موقع دیتے۔ وہ خود بھی متحرک رہتے اور اپنی عسکری طاقت کو بھی متحرک رکھتے۔ خشکی پر بھی وہ مقتدر تھے اور سمندروں پر بھی حکمراں۔ عدل و انصاف، امن و مساوات، خدا ترسی، اتحاد و اتفاق اور اسلامی تہذیب و تمدن کے وہ نگراں و محافظ تھے۔ انہوں نے علوم و فنون کو بہت فروغ دیا، زندگی کے ہر شعبہ میں کارہائے نمایاں کیے، پھر ان کے بعد ان کے جانشین آئے اور محاصروں میں اسیر ہو کر عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے، ان کے بازو کمزور ہو گئے، ان کی طاقت گھٹتی گئی، وہ مخلوق خدا سے غافل ہو کر شراب و شباب کے ہوش ربا طلسم میں کھو گئے۔ یہ ان کا آخری گناہ تھا، پھر انہیں قدرت نے معاف نہیں کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس نام نہاد خلافت کو ختم کر دیا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ملک اسلامیہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارہ مل گیا۔ قوموں کے زوال کے اسباب مختلف ہیں، لیکن عیش پرستی اور مخلوق خدا سے بے نیازی مشترک ہے۔ بلا شبہ عہد عباسی میں علوم و فنون کو بڑی ترقی ملی، بہت بڑے بڑے فلاسفر اور سائنس داں پیدا ہوئے جن کے کارنامے تاریخ میں محفوظ ہیں۔ خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں علم کلام کو عروج حاصل اور خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہو، بہت سے حق پسند و حق پرست علماء و صالحین شہید کر دیے گئے۔ مامون رشید نے انہیں حق بیانی کے جرم میں سزائیں دی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ہمنواؤں کو عقیدوبند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی، یہاں تک کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ مامون رشید کے بعد بھی یہ فتنہ پرجوش طریقے سے جاری رہا۔ یہ خلفاء قرآن کو مخلوق مانتے تھے، ان کے حامی مصلحت پسند علماء کی تعداد کثیر تھی۔ پھر ایک انقلاب پسند اور حق بیان پیدا ہو۔ اس نے کہا، جس بات میں رسول خدا خاموش رہے، ان کے اصحاب چپ رہے، تابعین کی جماعت خاموش رہی، اس بات پر تم لوگ بحث کر رہے ہو، جرح و تعدیل اور تعویلات سے کام لے رہے ہو، یہ بڑی جسارت کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ فتنہ اپنی موت آپ مر گئی۔ جس علم الکلام کی بنیاد پر یہ فتنہ کھڑا ہوا تھا، وہ علم مسلمانوں کو بہت مرغوب و محبوب تھا۔ خلافت عباسی کے آخری عہد میں علم کلام نے ایک نئی کروٹ بدلی، اس کی بنیاد پر مناظروں
की गरम बाजार ये शुरू हुई। मस्जिदों में मुनाजरे, शाहराहों और बाजारों में मुनाजरे, मसलकी मुनाजरे, नस्ली मुनाजरे, अर्जी व समावी मुनाजरे, कस्म के मुनाजरे व मबाहसे, तरह तरह के मौज़ूआत पर इन मुनाजरों ने देगरलूम की अहमियत को कम कर दिया। पूरी कौम मनाजरा बाजी के मर्ज में मुब्तला हो गई। लेकिन इल्म उल कलाम हो या कोई दूसरा इल्म, अपने आप में उछाया बरा नहीं होता। हकीकत यह है कि किसी कम ज़रफ़ आदमी को इल्म हासिल हो जाए तो वो उसको अपने मिजाज व मज़ाक के मुताबिक इस्तेमाल करता है। अगर मजाज सालेह न हो तो आलम कालम भी शैतानी खिराफात का सरचश्मा हो जाता है। शोहरत और मईशत की तलब इल्मी सच्चाई को खा जाती है। इल्म का गलत इस्तेमाल बहुत बुरे नताइज सामने लाता है। चुनाचे उस दूर के शोहरत तलब उलमाए सू ने अपने असल काम दावत व तबलीग और फ़रोग़ दीन व मुल्क को पस पशत डाल दिया। अपनी अस्करी ताकत से गाफिल आखिरी दर के खलफा अपनी हरम सराओं में शराब व कबाब की लज़ातों और हसन व जमाल की रनाइयों में ऐसा गिरफ्तार हुए कि फररहाई नसीब न हो सकी। अपने तहफ़्फ़ुज़ और बका के जिस ताबूत में ये कीलें ठूंकते आए थे, चंगेज़ खान ने उसमें आखिरी कील ठूंक दी और खिलाफत अब्बासी का नागुना व निशान मिट गया। मुसलमान चून चून कर कत्ल किए गए। मासूम बच्चों को नीज़ों पर उछालागी। चंगेज़ खां खुदा का कहर बन कर नाज़िल हुआ। जमीन अपनी तमाम तर फराखियों के बावजूद मुसलमानों पर तंग हो गई। खिलाफत स्पेन के ज़वाल के असबाब भी मज़कूरा दोनों खिलाफतों से मुख्तलिफ न थे। करीब 800 साला इस खिलाफत को नाअहल और नालायक बादशाहों ने खुद अपने हाथों से कफन पहना दिया। मुसलमानों का कत्ले आम हुआ। वो जिल्लत के साथ स्पेन से निकाल दिए गए। औरतें बांदियां बना ली गईं और स्पेन में बचे खचे मुसलमान गुलाम हो गए। ईसाइयों ने उनके इबादत खानों को गिरजा घरों में तब्दील कर लिया और बाकी मसाजिद को घोड़ों का इस्तबल बना दी। ये उस कौम का अंजाम है जिसके बुजुर्गों की बख्शी हुई इल्म की रोशनी से सारा यूरोप जगमगा रहा है। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का अरूज तारीख का एक ज़री बाब है और नग-ज़ेब आलमगीर तक इस सल्तनत की हदूद में इजाफा होता रहा। कोई ताकत मुगलों का सामना करने की जुर्रत नहीं रखती थी। औरंगज़ेब ने 50 साल तक निहायत शान व शुकत के साथ हुकूमत की। उसके बाद हुक्मरान तबका आपसी इख्तिलाफात का शिकार होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी और रंगून से काबुल तक फैली हुई इस अजीम अलशान सल्तनत के ज़वाल के असबाब भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। औरंगज़ेब के बाद कई बादशाहों ने तख्त व ताज को संभाला मगर उनका बोझ उठाने की ताकत किसी में भी ना थी। हमेशा की तरह हैश परस्ती, बुज़दिली, ख़ौफ़ गफलत और अलमी इन्हितात की वजह से अजीम मुगल सल्तनत सिमटते सिमटते आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अहद में सिर्फ दिल्ली तक महदूद हो गई। बस लंबे लंबे अल्काब बाकी रह गए। जब कलकत्ता से अंग्रेजी फौज दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी और मंजिलों पर मंजिलें सर करती हुई दिल्ली की तरफ चली आ रही थी, उस वक्त बूढ़ावर कमजोर बादशाह अपनी अस्करी ताकत का जायजा और इसलहों की दुरुस्ती और फराहमी के बजाय शतरंज खेलने और गज़लें कहने में मसरूफ था। उसके हाशे नशीन शरा व मुसाहिबेन उसकी शान में कसीदे कह कह कर उसे गुमराह कर रहे थे। उस मजबूर और बेबस दागो बादशाह को जुल्वलही और सुल्तान आलम के अल्काब से पुकारते थे। दुश्मन मंजिल बे मंजिल बढ़ता चला आ रहा था और बादशाह हाथियों की लड़ाई देखने और अक़सम पसम के जानवर पालने और आन से दिल बहलाने में मसत था। बची खची फौज को तनख्वाही नहीं मिल पाती थी। असलहे जंग आलूदा हो गए थे। बादशाह शायराना व मुतसूफाना तख़यलात की दुनिया में फरर होगी। हकीकत यह है कि उसकी हालत उस अश्तर मिर्ग जैसी हो गई थी जो खतरा महसूस करते ही रेत में गड़ा खोदकर अपने सर को छपा लेता है और ख्याल करता है कि वो दुश्मन की निगाहों से महफूज है। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल पज़ीर अहद की दिल्ली में अवाम और ख़ास की खुसूसी तफरीहात के दो बड़े ज़राए थे। एक तो मुशायरे और दूसरे तवाइफों के मुजरे। खाकानी है नून दाल जाल वाओ काफ दहलुए अपनी बिलावत
मीम रेज़े अलिफ वैन अलिफ लाम बे अपनी फिक्री और फलसफियाना बसीरत, मीम वाव मीम नून अपनी मुआमला बंदी व रुमान पसंदी, अलिफ वाव रे दाल अलिफ वैन अपनी सादगी व फसाहत में अपना आसानी नहीं रखते थे। मुशायरों की महफिलें बड़े पैमाने पर बरपा होती, तोइफों से मुजरे सुनना, उनके बालाखानों पर जाना, रस्म वराह रखना तहजीब व शराफत में दाखिल थे। अपने बच्चों की तहजीबी तरबियत के लिए तवाइफों की खिदमात हासिल करना ज़माने के शुरफा की खास इम्तियाजी शान थी। उस जमाना में औहदा और शाहान औहदा का भी यही आलम था। नज़ाकत ऐसी के सामने खिराया की कड़ी काट दो तो जुकाम हो जाए। अपने इक़्तिदार के लिए कौम का सुदा करने वाले उन ऐश परस्तों ने कौम को बेच दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी शहरों पर शहरावर कस्बों पर कस्बे फतह करती हुई तेजी से दिल्ली की जानिब बढ़ रही थी, मगर दिल्ली वाले तवाइफों से मुजरे सुनने और मुशायरों में शर कौदादु तहसीन से नौजने में मसरूफ थे। मशहूर है कि मीम रेज़े अलिफ दाल अलिफ वैन ने दिल्ली में शायरी कावा जादू जिगा रखा था का सामीन उनकी गज़लें सुनकर मशहूर हो जाते। कहते हैं कि जब दाल अलिफ वैन मुशायरों में अपना कलाम सुनाते तो दादू तहसीन के शोर से मुशायरा गा की छतें उड़ जाती। जाल वाव काफ वाव वैन अलिफ लाम बे मीम वाव मीम नून वाव दाल अलिफ वैन के अलावा उर्दू और फारसी के बहुत से अहल कमाल वफन जो जहानत व ज़कावत और लियाकत व सलाहियत के एतबार से आलातरीन मियार पर थे, जिंदगी भर शरकाते और दादू तहसीन वसूल करते रहे, उसी पर खुश थे। खाने वाओ मुतमईन थे, जिनके शिरों पर मशायरा गा की छतें उड़ जाया करती थीं और जो बेहतरीन दिमाग और एला सलाहियतों के मालिक थे। अपनी कौम के लिए कोई ऐसा इल्मी व तामीरी कारनामा न कर सके जिस पर आज उनकी कौम फख्र कर सकती। सुदूसु गज़लों के बजाय इंसानियत की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ एक थ्योरी और साइंटिफिक नज़रिया दे जाते तो आज पूरी इंसानियत ममनून एहसान होती। हद तो यह है कि जो लोग अपनी शायरी के जरिए कौम को आफ़ीवन देकर सुला रहे थे, जब 1857 हमज़ा में कौम पर साम्राज्य मजालिम की जाबराना उफ्ताद पड़ी तो यही लोग कौम को गुनूदगी की हालत में छोड़कर हिस्सुल ऐशवाओ माश के लिए दूसरी रियासतों की तोयरे फे भाग खड़े हुए। कुदरत ने इन्हें अला दिमाग और बेहतरीन सलाहियतों से नौ-अलिफ था, ज़माना शनासी की लियाकत अता की थी। ये लोग चाहते तो कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, मगर इन्होंने कुछ ना किया। जिंदगी भर अपनी खुदादाद सलाहियतें गैर जरूरी सिमतों में सिर्फ करते रहे। वो ऐसे मुहाजों पर अपनी जहानत का मुजाहरा करते रहे जहां से उनकी जवाल पजीर कौम को अभी फायदा पहुंचने वाला न था। उसी तरह मंसूर हलाज की जिंदा खाल खींची गई, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर खुदा को पाया था। बाप को 1850 हमज़ा में ईरान में उस ये गोली मार दी गई कि वो अपने आप को इमाम मौद समझते थे। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इंकिशाफ किया कि मसीह व कृष्ण की रूह उनके अंदर हलूल कर गई है। मगरी लोग जो माबदल तबियाती दुनियामी इतनी बुलंद परवाजियां दिखा रहे थे, उनमें कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो इंसानियत को साइंटिफिक उलूम में कोई नया तरीका या नई दरियाफ्त दे जाता। हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद बर्रे-सगीर में मुस्लिम कौम के ज़वाल की रफ्तार बढ़ती ही गई। ऐसा लगता है कि इस कौम के ज़वाल की कोई हद ही नहीं कि जिस पर निशात सानिया की बुनियाद कायम हो। यह कौम अभी ज़वाल पजीर है और ज़वाल या फतगी के आसार तक नजर नहीं आ रहे हैं। इस कौम ने ऐसे उलमा और दानिश्वर नहीं पैदा किए जो इस कारख इसके असली मरकज़ो महूर और मर्जा की तरफ मोड़ देते, इसका मुक़द्दर बदल देते। कौम फिरकों, तबकों और बरादरियों में बढ़ गई, मुंतशिर हो गई, उसकी सारी क़ुव्वत बिखर गई, जिंदगी के हर महाज पर नाकाम व नामराद हो गई। कानून कुदरत है कि इस कायनात में जो चीज अपनी नफा बख्शी खो दे, उसे परे कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। इस कायनात को गैर जरूरी और गैर मनफियत बख्श चीजों की जरूरत नहीं। दूसरों के लिए नफा बख्शी हमेशा इसार और कुर्बानी, भलाई व खैर ख्वाही, भाईचारगी और एहसास जमशदारी की बुनियाद पर मुमकिन है। लेकिन इस कौम ने इस जज्बा व एहसास को भी खो दी और भूल गई कि वो जिनकी मोहब्बत कादम भरती है, जिनका दामन न छोड़ने की बार बार कसमें खाती है, अल्लाह के
उसी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया है कि मुसलमान का भाई है, उसके लिए वही कुछ पसंद करे जो वो खुद अपने लिए पसंद करता है। इस कौम ने इज्तिमाइयत और उहदत के इस बुनियादी सबक को फरामोश कर दिया। ये भी भूल गई कि खुदा का वादा है कि वो नाफरमान कौमों को मिटा देता है और ऐसी कौम को इस्लाम की तौफीक अता फरमाता है जो इससे बेहतर होती है। अपनी इनफरादियत को खोकर मुस्लिम कौम ने गैर कौमों के शार को अपना ली, उनकी मुमासलत व मुताबत अख्तियार की। ईसाइयों ने अपनी इबादत के लिए हफ्ता में एक दिन इतवार को मुकर्रर कर रखा है, तो आम मुसलमानाना बर्रे-ए-सगीर ने खुदा की इबादत के लिए हफ्ता में एक दिन जुमा को मखसूस कर लिया है। मुसलमानों की अक्सरियत उसी एक दिन खुदा की इबादत करती है। इस कौम ने यहूदियों से सौदखोरी, ईसाइयों से लिबास और अहल हनूद से ज़ात और शख्सियत परस्ती के अलावा उनकी समाजी बुराइयों को भी रज़ा व रग़बत के साथ कबूल कर लिया है। अब इस कौम के पास इस कारपना क्या चाह, ये सवाल खुद ही अपना जवाब है। जिंदगी की हर सतह पर कौम के उलमा और इत्नशूर इसके निगरां व महाज होते हैं, उनकी हैसियत रहनुमायाना होती है, वही कौम को सही रास्तों की तरफ ले जाते हैं, सही खुतूत पर चलाते हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन कि खैर उम्मत की सूरत में ये ज़िम्मेदारी पूरी की जारी है, ये एक बराबर अहम सवाल है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि फ़िरक़ों, तबकों, बरादरियों और मज़ीद गिरोहों में बुटी हुई मुंतशिर कौम ने अपने तहज़ीबी व तमद्दुनी और मुआशरती निज़ाम के तारुपोद बखेर लिए हैं। अपनी सारी अच्छाइयाँ दूसरी कौमों को बख्श कर उनकी सारी बुराइयाँ, खिराफात और मज़मूम रसूम व रवाजात को अपने मुआशरा में राइज कर लिया। नसरानियों, यहूदियों और हिंदुओं के बहुत से तरीक़े अपना लिए, इस कौम का अपना क्या अपचा। कुरान भी, खुदा भी, रसूल करीम भी, कुल कायनात इसकी है, लेकिन फ़कीर है इसकी एक मिसाल जहीज़ जैसी जाबराना बदअमली है, इस्लाम से जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये खालिस हनूदी रस्म है जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है और जो किसी भी मुआशरा के लिए कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी है। मुसलमानों ने बड़े फ़ख्र के साथ अपने मुआशरती निज़ाम का लाज़मी हिस्सा बन लिया और उनके उलमा व दानिश्वर खामोश है। दीमक की तरह चाट जाने वाली जहीज़ की रस्म ने मुस्लिम समाज को नाखानदा व पसमानदा बना दी। जहीज़ की उसी लानत की वजह से आज मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों को अपनी जिंदगी का हम सफ़र बनाने पर मजबूर हैं। उनके वालिदैन के पास जहीज़ की इस्तिताअत नहीं होती। जिंदगी में हम सफ़र की ज़रूरत भी नागुज़ीर है, या पूरी जिंदगी तन्हाइयों की नज़र हो जाती है, सियाह बालों में चांदी के तार आ जाते हैं और आँखों में सारे सहाने खूब मर जाते हैं। जहीज़ की उसी लानत के सबब बच्चे तालीम से महरूम है। बच्चियों को खुदा की रहमत कहा गया है, लेकिन जब ये रहमत नाज़िल होती है तो लोगों के चेहरे फिक हो जाते हैं, उतर जाते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें बच्चियों से प्यार नहीं, कभी कभी तो बच्चों से ज्यादा अपनी बच्चियों को प्यार करते हैं, मगर क्या करें कि जहीज़ का बोझ उनकी कमरों को दोहरा कर देता है। उसी बोझ को हल्का करने के लिए वो बच्चों को तालीम के बजाय काम पर लगा लेते हैं ताकि अपनी बच्चियों के लिए जहीज़ की रकम जमा कर सके। ज़माना जाहलियत में वहशी अरब अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया करते थे, मगर हमारे ज़माने में इन्हें पैदा ही नहीं होने दिया जाता और माँ के शकम ही में दफन कर दिया जाता है, किचन में जिंदा जला दिया जाता है। जहीज़ की इस रस्म और दीगर खराफात ने पूरे मुस्लिम मुआशरा की धज्जियां बखेर रखी हैं। सारा करप्शन उसी से फैला हुआ है। जहीज़ का बोझ ना हो तो हर बाप चाहेगा का इसके बच्चे तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। भारत की सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस मुल्क में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। वो खुदे इफलास से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, मगरान के मसलिहीन के कानों पर जो तक नहीं रेंगती। तबाहियों और बर्बादियों का एक सैलाब है जिसमें ये कौम बही चली जा रही है। जो लोग इस बहाव को रोक लेने की सलाहियत रखते हैं, वो भी उसी में बह चले जा रहे हैं। गैर जरूरी मुहाजों पर सरगर्म है। अलिफ काफ बे अलिफ लाम नून बढ़िए कहा था।
तोशा ही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, लेकिन इस कौम का हाल ये है कि इसके जवाल और पस्तियों का सिलसिला ये खत्म होने में नहीं आ रहा है। बराहीमी सदाकत को जानती है मगर अशलों से डरती है, असाए मौसूए हाथों में है और सांपों से खौफजदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए नमूने का एक मिसाली मुआशरा कायम किया था जो कामयाबियों और कामरानियों का ज़ामन था। इस मुआशरा ने बड़े बड़े रिफार्मरावर हीरोज पैदा किए जो पूरी दुनिया पर असरअंदाज हुए, जिसमें जहीज और बारात जैसी खराफात की कोई गुंजाइश न थी, कोई तस्वुर न था। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी हजरत फातिमा अल-ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया तो उन्हें जहीज नाम की कोई चीज नहीं दी, जो कुछ दयावा हजरत अली को दिया का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कुफैल और सरपरस्त थे। निकाह के सारे अलिफ खराजात हजरत अली ने अपनी जरा बीचकर अदा किए थे। बाद के ज़माने में इस फलाही मुआशरा को मुसलमानों ने मुस्तरद कर दिया और वही कुछ के जो यहूदियों ने अपने पैगंबरों के साथ किया था का नबी व रसूल को तो मानेंगे लेकिन उनके फरमुदात पर अमल नहीं करेंगे। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने यहूदियों पर लअनत भेजी। यहूदियत इसके शौक छोड़े नहीं कि अपने नबी व रसूल की तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए जाएं और खुदा का शरीक तक ठहरा दिया जाए मगर उनकी हदायत पर अमल न किया जाए। क्या मुसलमान लानत ज़दा यहूदी कौम की राह पर चल निकले हैं। नाफरमानी, खुद गर्जी, खुदफरीबी, नाइंसाफी, बेईमानी, लालच, हवस, रियाकारी, शराब नोशी, कमारबाजी, इशरत पसंदी, सूदखोरी, वदा खलाफी, अदम मुसावाते, अदम सिला रहमी, धोखा, मुकर, फरेब, तनासानी, कत्ल वखून और गारत गिरी वो कौन सी बुराई है जिसकी लानत में मुस्लिम कौम गिरफ्तार नहीं, पर भी मोहब्बत रसूल का दावा है और आस के लिए झूठी कस्में खाई जा रही हैं। नतीजा ये कि अल्लाह व रसूल के तमाम तरवासतों के बावजूद जब दुआएं नामकबूल हो जाती हैं तो कौम शिकायत पर आमादा है कि बर्फ गिरती है। तो बेचारे मुसलमानों पर अपनी जात के खूल में बंद नाजायज मफाद परस्ती में मुब्तला इस कौम को न जाने कब अपने मुहासबे की तौफीक अता होगी भी या नहीं, क्या पता।